Okay, good afternoon, class. So, in the previous one, I have told about propositional logic. Now we have to continue that. Earlier, I have told you about three logical connectives, that is conjunction, then after disjunction, and then after negation. Okay. Now the remaining two, that is conditional, that is also known as implication, and the next one is biconditional, that is also known as equivalence. So we are going to discuss about these two. Okay. So if we say about this conditional or implication here, let P and Q are the propositions, then the conditional statement, this is P implies Q, and it is read as if P then Q. Okay, we have to represent this symbolically as P implies Q, and it is read as if P then Q. Okay, where P and Q are the propositions. Now, the truth value for this, so here we are saying the conditional statement P implies Q is false when P is true and Q is false. Okay. The truth value of P implies Q is false only in the case of whenever P is true and Q is false. Otherwise, it is always true. Therefore, the corresponding truth value will be this one. From this, you can say it is false only when P is true and Q is false. Otherwise, it is true. Okay. So this is the truth table of P implies Q. Now, one more definition part is here. Whenever we are writing P implies Q, then this P is called to be as hypothesis, that is also called antecedent or premise. Okay. Whatever written in left of this arrow operator is called to be as hypothesis, antecedent or premise. And whatever written in right of this arrow is called to be as conclusion or consequence. Okay, so this part is hypothesis and this part is conclusion, or you can say this part is premise and this part is consequence, and this is the truth table of implication. Okay, it will be false only when P is true and Q is false. Otherwise, it is true. Let us say this one. One more thing is here. For this P implies Q, it is not mandatory that we will use only if P then Q. Okay. If we have given P implies Q, then this will be read as if P then Q. But it is not only this case. Rather, we can use some more other synonyms also. Likewise, if P, comma, Q means we are not using then. That is also P implies Q. We can write this way, Q if P. तो अगर फॉर्मूला कोई P implies Q है तो उसको हम रीड कर रहे हैं Q if P. Either you have to write if P then Q, or you can use Q if P. In the same way, we can use Q when P. Then there is, this can also be written with this unless keyword, and here we are saying Q unless negation of P. So this P implies Q can also be written as Q unless
negation of P. Okay. Likewise, suppose मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. Let us say P is you work hard, and Q is you will you will pass. Now, from this, what is the sentence P implies Q? Yes. Anyone? What is the sentence for P implies Q? You can answer. You can unmute yourself and you can say what is the statement for P implies Q. If Here, you work hard, then you will pass. yes, that's correct. The sentence will be if you work hard, then you will pass. Okay. Yes, Ketan, you are also correct. It will be if you work hard, then you will pass. So this is the sentence for P implies Q. Now what I am saying here, rather than saying this, we can also say if you work hard, comma, you will pass. This is similar. Or we can write by this way, Q if P, यानी कि you will pass if you work hard. तो ये सभी जो है P implies Q को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, either you can write by this way, or you can write by this way, or you can write by this way, or you can write by this way. Q when P, यानी you will pass when you work hard. Unless negation of P, so you will pass unless you do not work hard. ठीक है. The statement will be you will pass unless you do not work hard. तो ये भी सेम स्टेटमेंट है. फिर P implies Q, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वर्क हार्ड implies you will pass. या फिर P only if Q, यानी you work hard only if you will pass. ठीक है. फिर है Q whenever P, यानी you will pass whenever you work hard. And the last one follows from, that is you will pass follows from you work hard. Okay, so these are the various ways to write P implies Q. Okay, except if P then Q. So it is not compulsory every time the sentence will be given like if P then Q. It may be given in any one of this form also. So there you have to identify what is P, what is Q, and you have to write the formula accordingly. Okay. One more thing is here.
whenever we are writing P implies Q, it means P is the sufficient condition for Q. Just remember, whenever we are writing P implies Q, it means P is the sufficient condition for Q and Q is the necessary condition for P. Okay, sorry. P is the sufficient condition for Q. जैसे यहाँ पे you work hard, तो वर्क हार्ड जो है ये सफिशियंट है कि बताने के लिए यू विल पास. इन द सेम वे क्यू इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर पी, यानी यू विल पास ये नेसेसरी है इफ यू वर्क हार्ड. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस implication. Whenever we are saying implication, it means P is the sufficient condition for Q and Q is the necessary condition for P. That's why we will define another logical connective that is called biconditional. तो कंडीशनल और बाई कंडीशनल में यही डिफरेंस है कि कंडीशनल में एक नेसेसरी होता है और एक सफिशियंट होता है, जबकि बाई कंडीशनल में दोनों ही नेसेसरी और सफिशियंट दोनों होते हैं, क्योंकि वहां पे बाई कंडीशनल का मतलब पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है और क्यू जो है पी को इम्प्लाई कर रहा है. तो दैट्स वाई both are necessary and sufficient condition for each other. Okay, so that will be discussed later. So here, if we consider for this example, let me say this is one statement. P is the statement that Maria learns discrete mathematics. Q is the statement Maria will find a good job. Then what is the sentence for P implies Q? Yes, anyone? So it will be, if Maria learns discrete mathematics, then she will find a good job. Okay. If we are writing with this if then keyword, then the sentence will be this one. This can also be written as Maria will find a good job when she learns discrete mathematics. That is Q when P. तो ये Q पार्ट हो गया, when and ये P हो गया. Okay. Now based on this, there is three terms that we will use here, and this is called to be as converse, contrapositive, and inverse. Okay, so what is that? Let me converse, inverse, and contrapositive. So for any implication statement, let us say P implies Q, we can find what is the converse statement, what is contrapositive, and what is inverse statement. So here, if the given statement is P implies Q, okay, then the corresponding converse statement will be Q implies P. Okay, if the given statement is P implies Q, then the corresponding converse statement will be Q implies P. Okay. In the same way, the contrapositive statement will be negation of P. Q implies negation of P. If the given statement is P implies Q, then its
corresponding contrapositive statement will be negation of Q implies negation of P. So you can use this tilde sign or you can use this sign. Both are used for negation. Okay, so this is called to be as contrapositive. And the third, inverse. So inverse for any P implies Q statement is negation of P implies negation of Q. So these are the three results that you always remember. So whenever we are given with P implies Q, we can find out that's converse statement, contrapositive statement, as well as inverse statement. So the converse is defined to be as Q implies P, contrapositive is defined to be as negation of Q implies negation of P, and the inverse is defined to be as negation of P implies negation of Q. So based on that, before moving further, let me tell you from this ट्रूथ टेबल, ये जो हमने ट्रूथ टेबल बताया था आपको, ये इम्प्लीकेशन का, इस ट्रूथ टेबल से हम ये बोल सकते हैं कि दिस P implies Q is equivalent to negation of P disjunction Q, क्योंकि ये केवल इस केस में फॉल्स है और यहाँ पे P क्या है, ट्रू है, और Q क्या है, फॉल्स। तो करस्पॉन्डिंग इसका जो मैक्स टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P, क्योंकि P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P फॉल्स होगा और Q पहले से फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स का डिसजंक्शन हमेशा क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस P implies Q is equivalent to negation of P disjunction Q। यानी इस P implies Q को बिना implication के लिखना हो तो आप ये यूज कर सकते हो। So whenever we have to eliminate this implication operator, this can be done by this one. So in place of P implies Q, we can write negation of P disjunction Q। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। लेट अस से हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर ले निगेशन ऑफ P के लिए, तो इस P के करस्पॉन्डिंग निगेशन ऑफ P की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, तो देखो P की वैल्यू ट्रू है तो निगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा, फिर ये P फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P ट्रू होगा, और ये फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P ट्रू होगा। तो ये हो गया आपका निगेशन ऑफ P की वैल्यू। अगर हम इसमें कॉलम ऐड कर दें निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q का, तो निगेशन ऑफ P का रो ये है और Q यहाँ पे है, इन दोनों का डिसजंक्शन करना है, तो फॉल्स और ट्रू डिसजंक्शन हो जाएगा ट्रू। डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसी की हेल्प से मैं लिख रहा हूँ, ये फॉल्स और ये ट्रू, क्या हो गया, ट्रू। ये फॉल्स और ये फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से ये ट्रू और यहाँ पे भी ट्रू, तो ट्रू और ट्रू का डिसजंक्शन हो गया ट्रू, और ये ट्रू और यहाँ फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स का डिसजंक्शन हो गया ट्रू। So if we compare the truth values of P implies Q and negation of P disjunction Q, अगर हम इन दोनों कॉलम को कंपेयर करें, ये वाला और ये वाला,
तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो अगर किसी भी दो फॉर्मूला का ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल हैं तो वो इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो जब भी हमें दो फॉर्मूला को इक्विवेलेंट प्रूफ करना हो तो उसके लिए हम ट्रूथ टेबल से इस तरीके से कर सकते हैं। अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल हैं तो देन वी कैन से बोथ आर इक्विवेलेंट। तो आप देखो, इसका ट्रूथ वैल्यू जो है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू है, और इसका भी ट्रूथ वैल्यू जो है ट्रू 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 है। तो इसलिए ये P implies Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। ये तीन पैरेलल लाइन यूज करते हैं इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दिस वन, so whenever we have not to use implication, तो that can be done by this way। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q का मतलब है पहले हम निगेशन ऑफ P परफॉर्म कर रहे हैं। आगे मैं आपको प्रेसिडेंस बताऊंगा, तो प्रेसिडेंस में बताया जाएगा कि निगेशन का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q लिखने का मतलब ये है कि पहले हमें निगेशन ऑफ P परफॉर्म करना है और फिर उसका हमें Q के साथ डिसजंक्शन लेना है। ठीक है, तो दिस इज वन रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। यस, एनी क्वेरीज अप टू दिस यू कैन आस्क। एनीवन? टेल मी, एनी डाउट्स? ओके, वन मोर थिंग इज हियर। आप रखो, पी इम्प्लाइज क्यू लिख रहे हैं तो इस पी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीसीडेंट और प्रीमाइस, एंड दिस क्यू इज कॉल्ड कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, सो मूविंग अहेड, लेट मी डिलीट दिस। हियर वी आर, ये मैंने आपको बताया। हम यहाँ पे थे कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या कि P इम्प्लाइज Q के लिए जो कन्वर्स है दैट इज Q इम्प्लाइज P, कॉन्ट्रापोजिटिव दैट इज निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, और जो इनवर्स है दैट इज निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। नाउ कंस्ट्रक्ट दिस, मैं आपको बता रहा हूँ। सभी लोग आप ये ट्रूथ टेबल बनाओ। P, मैं आपको कॉलम्स बता दे रहा हूँ। Q, P implies Q, negation of P, negation of Q, Q implies P, और negation of Q implies negation of P, और last negation of P implies negation of Q। So इस टेबल में क्योंकि हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं P और Q, तो इसलिए 4 रो वैल्यूज होंगी। ठीक है, दैट विल बी,
तो पी और क्यू के लिए 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, और ट्रू ट्रू। चलो इस टेबल को कंप्लीट करो जल्दी से सभी लोग, कंप्लीट दिस टेबल। हो गया? डन। तो P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा? P फॉल्स है, Q फॉल्स है, तो ट्रू हो जाएगा। इम्प्लीकेशन में मैंने बताया था, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, बाकी सभी केसेस में ट्रू होता है। फॉल्स ट्रू, ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स, इट इज फॉल्स, एंड ट्रू ट्रू, इट इज ट्रू। तो ये हो गया P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल। निगेशन ऑफ P, तो P फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P ट्रू हो गया, P फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P ट्रू हो गया, P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P फॉल्स हो गया, और P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P फॉल्स हो गया। निगेशन ऑफ Q, यहाँ देखो Q फॉल्स है तो निगेशन ऑफ Q ट्रू होगा, Q ट्रू है तो निगेशन ऑफ Q फॉल्स होगा, Q फॉल्स है, निगेशन ऑफ Q ट्रू होगा, और Q ट्रू है तो निगेशन ऑफ Q फॉल्स होगा। अब हम बात कर लेते हैं Q इम्प्लाइज P, यानी ये पहले लेना है हमें। तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू हो गया, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स हो गया, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू हो गया, और ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू हो गया। अब हम लिख लेते हैं निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो ये निगेशन ऑफ Q है और ये निगेशन ऑफ P है, इन दोनों का इम्प्लीकेशन लेना। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू हो गया, फॉल्स, सॉरी यहाँ पे है, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू हो गया, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स हो गया, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू हो गया। ऐसे ही हम लिख लेते हैं निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q के लिए। तो ये निगेशन ऑफ P है, ये निगेशन ऑफ Q है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू। ये आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट है। P ये आपका कन्वर्ट्स है, Q इम्प्लाइज P। ये कॉन्ट्रापोजिटिव है, और ये इनवर्स है। अब इस ट्रूथ टेबल को देख के क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? यस, एनीवन?
इस ट्रूथ टेबल से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? रिलेटेड टू इक्विवेलेंस. Yes, anyone? तो आप देखो जरा इसको. P implies Q का जो ट्रूथ वैल्यू है वही ट्रूथ वैल्यू निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P का है. देखो, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और ये ट्रू है, ये भी ट्रू है. गॉट दैट? So from this, the first conclusion is P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P. यानी कि किसी भी स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट होते हैं. तो either you can say P implies Q or you can say negation of Q implies negation of P. यानी स्टेटमेंट और कॉन्ट्रापोजिटिव दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं. ठीक है. इन द सेम वे, इफ यू लुक फॉर दिस वन, ये कॉलम देखिए और ये कॉलम देखिए, दोनों क्या है? आइडेंटिकल. ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू. यानी कि किसी भी स्टेटमेंट का इनवर्स और उसका कन्वर्स दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है. एक स्टेटमेंट का इनवर्स और उसका कन्वर्स दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है. तो दिस टू इंफॉर्मेशंस वी हैव फाइंड आउट फ्रॉम दिस ट्रूथ टेबल. पहला, स्टेटमेंट और कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होते हैं. दूसरा, इनवर्स और कन्वर्स ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. एनीवन हैविंग डाउट्स? टेल मी. So it will be clear from the two table. We are saying that the statement and contrapositive both are equivalent, and the converse and inverse both are equivalent. We have shown by this table also. Okay. So moving ahead, let me delete this. The next point. The contrapositive always has the same truth value as P implies Q. यही मैंने अभी आपको बताया कि स्टेटमेंट और कॉन्ट्रापोजिटिव इक्विवेलेंट होते हैं. When two compound propositions always have the same truth value, we call them equivalent. ठीक है. तो अगर किसी भी दो प्रोपोजिशन का
अगर ट्रूथ वैल्यू सेम है तो उन दोनों प्रोपोजिशंस को हम इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन बोलते हैं. तो therefore from this we can say conditional statement and its contrapositive are equivalent. ठीक है, ये हमने अभी आपको बताया, ट्रूथ टेबल से दिखाया भी. इसी तरीके से जो दूसरा है, द कन्वर्ट्स एंड द इनवर्ट्स ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट और आर ऑल्सो इक्विवेलेंट, ये भी मैंने आपको टेबल में शो किया. ठीक है, देन कम्स सम एग्जांपल्स. लेट अस से this one. Suppose this is the problem statement. We are asking for what is the contrapositive, converse, and inverse of the statement the home team wins whenever it is raining. So first of all, tell me what is the formula, and for formula you have to identify what is you can say atomic propositions here. ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है, तो इसमें आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि इसमें एटॉमिक प्रोपोजिशन या प्रिमिटिव प्रोपोजिशंस क्या क्या है, एंड हाउ टू राइट दिस सेंटेंस एज ए फॉर्मूला, प्रोपोजिशन फॉर्मूला. तो इसको हम प्रोपोजिशनल वेरिएबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यस, टेल मी, एनीवन? सो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि P implies Q को हम बोलते हैं if P then Q, and that is equivalent to say Q whenever P. तो अगर आप इसका फॉर्मूला P implies Q लिखना चाहते हो, इसको हम कैसे राइट करेंगे आंसर, तो मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, कि आपको क्या क्या लिखना है इसमें. तो आप इसमें पहला मेंशन करोगे कि P क्या है. तो P हम क्या ले रहे हैं? यस, टेल मी. अगर हम इसको P implies Q फॉर्मूला लिख, it is raining. और सॉरी, क्यू लेना होगा हमें द होम टीम विंस. आप ऐसे लिखोगे, देख लो. ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे देन गिवन स्टेटमेंट इज या गिवन सेंटेंस इज ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसी तरीके से मेंशन करना पड़ेगा कि पहले हम एटॉमिक प्रोपोजिशंस बताएंगे और फिर उसके बेसिस पे हम करस्पॉन्डिंग फार्मूला मेंशन करेंगे. तो द गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q. यहाँ पे P है इट इज रेनिंग और Q है द होम टीम विंस. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि P implies Q को हम बोलते हैं Q whenever P.
यानी कि द होम टीम विंस व्हेन एवर इट इज रेनिंग। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया P इम्प्लाइज Q। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि किसी भी स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q के लिए जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वो क्या होता है? तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो P इम्प्लाइज Q के लिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? टेल मी। So it will be negation of Q implies negation of P. So tell me, what is the sentence? Yes, anyone can unmute yourself and you can answer. Or you can raise your hand, I can unmute you. Yes, what is the contrapositive sentence? Anyone? Yes, let me unmute you. Deepak. Yes, Deepak. Sir, if the home team uh, does not win whenever it is it it does not raining. पहली बात, अगर आप वेन एवर से यूज कर रहे हो तो वेन एवर मैंने बताया था कि P इम्प्लाइज Q के लिए वेन एवर जब हम यूज करते हैं तो इट बिकम्स Q वेन एवर P। ओके, तो अगर आप वेन एवर से लिखना चाह रहे हो इसको तो ये होना चाहिए P नेगेशन ऑफ Q। जैसे कि P इम्प्लाइज Q को जब हम वेन एवर से लिखते हैं तो इट बिकम्स Q वेन एवर P। इसी तरीके से निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P को अगर हमें वेन एवर से लिखना है तो इट मस्ट बी निगेशन ऑफ P वेन एवर निगेशन ऑफ Q। एंड देयरफॉर द सेंटेंस So, इज इट इज नॉट रेनिंग वेन एवर द होम टीम डज नॉट विन। गॉट दैट? so then से यूज करेंगे तो does not दोनों और साइड अगर पे आप लगा इफ सकते हैं. देन यूज कर रहे हो तो इफ देन से सीधा है इफ द होम टीम डज नॉट विन देन इट इज It नॉट is रेनिंग। not raining. Yes. ओके, तो अगर Yes, sir. आपको कंफ्यूजन है वेनेवर या इन सब में तो सीधा तरीका है आप इफ देन से लिखो उसको। ठीक है, Okay, sir. तो ये क्या हो जाएगा? इफ निगेशन ऑफ Q देन निगेशन ऑफ P। यानी कि इफ द होम टीम डज नॉट विन देन इट इज नॉट रेनिंग। Okay, so this is the contrapositive. In the same way, you can write for converse and also inverse. तो कन्वर्स के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये लिखने के बाद आप नीचे सेंटेंस लिखोगे जो मैंने अभी बताया आपको। इसी तरीके से फिर आप लिखोगे कन्वर्स के लिए। तो कन्वर्स होता है क्या? P इम्प्लाइज Q के लिए कन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P। और Q इम्प्लाइज P सेंटेंस क्या हो जाएगा? P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, तो बताओ Q इम्प्लाइज P क्या लिखेंगे हम? Q का मतलब द होम टीम विंस, यानी कि द सेंटेंस विल बी इफ द होम टीम विंस देन इट इज रेनिंग। द सेंटेंस विल बी इफ द होम टीम विंस देन इट इज रेनिंग। इसी को अगर हमें वेन एवर से लिखना हो तो इट इज रेनिंग वेन एवर द होम टीम विंस। ठीक है, आइदर यू कैन से
It is raining whenever the home team wins, or you can say if the home team wins, then it is raining. If Q, then P. if Q का मतलब ये, P का मतलब ये. तो if the home team wins, then it is raining. Yes, is it clear? Okay. अपने आप से आप कुछ भी इसमें यूज नहीं करोगे. ऐसा नहीं है आप कभी when लगा दो इधर से उधर, तो वो सेंटेंस गलत भी हो सकता है. तो दैट्स वाई इट्स बेटर टू यूज इफ देन, क्योंकि वो वेरी सिंपल है. इफ क्यू देन पी. ठीक है, तो आप इसको फॉलो करो तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा. ठीक है, इसी तरीके से आप इनवर्स लिखोगे तो P इंप्लाइज Q के लिए इनवर्स क्या होता है? negation of P implies negation of Q. Negation of P implies negation of Q. If it is not raining, then the home team does not win. ठीक है, the sentence will be if it is not raining, then the home team does not win. ठीक है, so by this way you can find out converse, inverse, contrapositive for any implication statement. The main thing that we have to remember is the proper selection of P and Q and writing the formula. अगर आप P इसको नहीं लेते, P ये लिखते और Q इसको लेते, अगर आपने इंटरचेंज किया होता तो फॉर्मूला भी आप P इम्प्लाइज Q नहीं लोगे, क्या लोगे? Q इम्प्लाइज P, क्योंकि इस सेंटेंस में ये जो है इसको इम्प्लाई कर रहा है. ठीक है, ये इसको इम्प्लाई नहीं कर रहा है, जबकि ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, क्योंकि इट इज ऑलवेज Q वेन एवर P. तो ये P होना चाहिए, ये Q होना चाहिए, तभी आप P इम्प्लाइज Q लिख सकते हो. अगर हम उल्टा ले लेते हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंगली सभी जगह हम चेंज करके लिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. एनी क्वेरीज अप टू नाउ यू कैन आस्क, otherwise we can stop here. Yes, anyone having any queries? Okay, thank you all. We'll meet again in the next class. Have a nice day.